Good morning, class 8. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, I will going to start with the last chapter of your geography portion, that is your human resource. In this chapter, we will going to study that what do we mean by the human resource and how this resource can be utilized as the you can say the asset for the development of any economy. So let's start with the chapter. Human resource. Human resource if you see, it is made up of two words. दो words को मिला करके ये word बनता है. That is, one is your human and another one is your resource. Human means हम जो इंसान हैं, and the resource is anything which can be utilized to fulfill our needs. For example, mineral, soil, animal, plants, plant products. So these are all the resources. So human are also one of the kind of resource. कैसे? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के ही थ्रू हम अपने वो नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, हम उन काम को कर सकते हैं. किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है. कौन सी पॉपुलेशन? देखो, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है इट कंप्राइजेज ऑफ मोर ऑफ दी older peoples. For example, in Italy there are almost 50% are the old people above the age of 60. Means ऐसी population है जिनसे हम बहुत ज़्यादा fruitfulness generate नहीं कर सकते हैं. But country like India, we are one of those nation in which the पॉपुलेशन ऑफ यूथ, हमारे यहाँ जो यूथ की पॉपुलेशन है, यूथ मीन्स फ्रॉम 18 to 35 यू कैन से, जो ये पॉपुलेशन ये सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में है. एंड दस हमारी कंट्री को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हब कहा जाता है. ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल यू कैन से चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी ह्यूमन को इन द ट्रांसफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स. किसी भी ह्यूमन को हम एज अ रिसोर्स कंसिडर तब तक नहीं करते जब तक हमने उसके स्किल डेवलपमेंट पे, उसके एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, उसके क्रिएटिविटी पे कुछ इन्वेस्टमेंट ना किया हो और वो अपने एक रॉ ह्यूमन से एक बेटर ह्यूमन ना बन गया हो, जहाँ और उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी एक्वायर ना हो गई हो जो हम किसी भी ऐसे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है. देन आपका जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री के लिए एसेट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड ना हो. सो दिस इज़ व्हाट ह्यूमन रिसोर्स इज़ ऑल अबाउट. ये आपका जो इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर में, फ्रॉम हेयर इट इज़ the starting of the chapter. Next heading in your chapter is your population distribution. Population distribution as the heading itself suggests कि population का distribution किस तरह से हमारे world में, entire world में किस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इंटायर वर्ल्ड में जो कहीं पर आप देखोगे कि बहुत कम लोग रहते हैं, कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं. अगर इस तरह से देखा जाए तो in entire world the 90% of the population lives in the plains and the 50% of the land is the plains. तो यानी कि जो plains हैं उन पर population density बहुत ज़्यादा होती है. On the basis of the density, the area of the you can say the area of the earth can be divided into three, that is area of high density, area of moderate density and the area of lower density. Area of high density means that area which is having favorable climatic condition, fertile soil, good and developed agriculture, good and developed network of transportation and communication. तो इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो कहाँ हैं? These are basically China, Japan, South Korea, North Korea, Philippines, then Indian subcontinent, that is India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka. These are all the densely populated countries. यहाँ पर जो these countries are nearly half of the are having the half of the total population of the earth.
मतलब पूरी अर्थ पे जितने लोग रहते हैं उनका हाफ पॉपुलेशन हमारे ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई दे आर मोस्टली दी प्लेन्स, और इनका जो लैंड है वो बहुत एग्रीएबल लैंड है। उसके अलावा आपके वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में भी आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को अच्छा यू कैन से उनको उनकी जो अर्निंग्स हैं, उनको जो रोज़गार मिल रहा है वो आसानी से मिल पाता है। देन कम्स द एरिया ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, मीन्स दोज एरियाज वेयर द डेंसिटी इज़ मॉडरेट। ऐसा एरिया जहाँ पर ठीक ठाक से लोग रहते हैं, उतने ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। और यहाँ पर जो ये ठीक ठाक से भी पॉपुलेशन हुई है, ये बेसिकली इसलिए हो पाई है क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अच्छा हुआ, मीन्स ऑफ इकोनॉमिक जो अर्निंग्स हैं वो लोगों के बीच में जनरेट हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, तब जा कर के ये एरियाज़ आर दी मॉडरेट हैविंग दी मॉडरेट पॉपुलेशन। इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? दीज आर यूएसए, सदर्न रशिया, यूक्रेन, साउथ अमेरिका, देन सेंट्रल चाइना, अर्जेंटीना, कोस्टल प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, then comes your Southeast Australia, Deccan Plateau in India. These are all the moderately moderately populated areas. Then next is your area of low density. देखो जो area of low density वो basically वो areas हैं जो कि जिनके जो टेरेन है, उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दी ह्यूमंस, और वहाँ पर जो ह्यूमंस रहते भी हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा यू कैन से डिफ़िकल्ट होती है, और इस वजह से उनकी जो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो आप कह सकते हो जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। यहाँ पर आपको लैंड्स बेसिकली मिलेंगे, रग्ड लैंड्स होगा, हाई माउंटेन्स होंगे, या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, आइदर उस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गीला है, इट्स वेरी ह्यूमिड, इट्स वेरी ड्राई, और इट्स मतलब इस तरह का कंडीशन है जहाँ पर आपके नॉर्मल ह्यूमंस का सर्वाइवल मुश्किल होता है। वहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली लो रहती है। फॉर एग्जांपल आपका द सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लो डेंसिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर होती है। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं है, और हमको यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा वहाँ पर अपने आप को नॉर्मल अपनी लाइफ कंडीशंस को वहाँ पर बिल्डअप करने के लिए। देन योर Arctic region and North Antarctic region, then Greenland, then कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जैसे Amazon basin, forested areas of Amazon basin in South America, and then Congo basin in Africa. ये भी सब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। क्यों? देखो कोल्ड जो वेदर है ऑब्वियसली वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, खाने के लिए चीज़ें कम हैं, तो लोगों को वहाँ पर रहने के लिए दिक्कत होगी। हंटिंग के लिए भी कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। देन आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसका भी उतना स्कोप नहीं होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आपका वो भी डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना डिफ़िकल्ट होता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट दी फॉरेस्टेड एरियाज़ ऑफ अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका और द कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका, तो ये भी इतने ज़्यादा डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही वार्म एंड ह्यूमिड होता है, और यहाँ पे स्वैम्पी लैंड्स होते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनका रहना पॉसिबल नहीं होता है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास. फॉर द डिस्कशन ऑफ द फर्दर चैप्टर we will going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.